Okay, so Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. And thank you very much for joining us for today's session. My name is Kunain Kurban, and I'm the founder of Frontier Technology Institute, a non-formal data analytics education and corporate training organization. On behalf of FTI, I would like to extend a very warm welcome to all of you for joining us in the latest session of our distinguished speaker series, Talks at FTI. I am glad to announce the speaker for today, Mr. Umar Faruqi, who is a seasoned HR professional with expertise in training, organizational development, organizational design, HRBP, recruitment, culture, and engagement in renowned companies in Pakistan. Umar is most well known for carrying one of the largest LinkedIn following in Pakistan with more than 110,000 subscribers, with whom he regularly engages for betterment of the society. In his presentation today, Umar will be talking about his intuitive formula, which he calls the Magic Six, that sums up exactly the SOPs one must follow in order to land their dream job. And so, without any further ado, I request Mr. Umar Faruqi to take over from here. Thank you so much, Kunain, for inviting me, and thank you so much. Thank you, everyone, for showing up. And I hope this session is fruitful to you. I'll keep it precise and I'll keep it to the point so that you guys understand. I won't be sharing any presentations over here. I'll be sharing, I'll actually be talking. And I hope you guys, if you guys want to make notes, but I think this is being recorded as well. So if you guys want to revisit it later, you guys can. As Kunain mentioned, I've been in HR for the past 7 years. I've been working in Engro. Most of you might know about this company. It's one of the largest conglomerates in Pakistan. After my BSc from LUMS in 2014, I've been really active on LinkedIn. And because of my profession in HR, I've been helping people. I've been understanding what the organizations want in prospective employees and what people are lacking, actually, the gap. And that because of that, probably I have a following on LinkedIn. And last year I launched my YouTube channel as well, in which all the things that I'm going to talk about right now are already mentioned over there in detail. ठीक है. Before we proceed, जो भी participant है, can I request you to just mention if you guys have heard me anytime before this session, or if you interacted with me on LinkedIn or my learning club or YouTube. Just want to get a feel of the audience. आप लोग chat पे लिख सकते हैं. Okay, Mohammed Saad, see me on LinkedIn. देखिए, मैं कैमरा से सबके खुलवा नहीं रहा, तो एटलीस्ट मैसेज से मुझे ये हो जाएगा कि आप लोग सुन रहे हैं. चलें, ठीक है. सो आप कुछ लोगों ने लिंक्डइन पे देखा हुआ. अहमद हैं, बिलाल हैं, सलमान है पहली दफ़ा. चलें, सलमान है, होप इट हेल्प्स यू. ठीक है. So, Magic Six, why I call this the secret to getting your desired job, because मुझे LinkedIn पे ज़्यादातर लोग जो मेरे messages भी होते हैं वो यही होते हैं, rightfully so. Everyone wants a job, everyone wants some sort of employment, some sort of a career. तो वो उस चीज़ में हेल्प मांगते हैं. सो मैं सबको एक स्टैंडर्ड आंसर देता था हमेशा कि भाई जॉब अप्लाई करने से नहीं लगती, जॉब सोर्स पे सिर्फ नहीं लगती. जॉब हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर प्लेइंग इनटू, दैट इंक्लूड्स योर ग्रूमिंग, योर पर्सनालिटी, योर एजुकेशन, योर रेज्यूमे, अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जो हमें लगता है ना कि यार अच्छा हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ, हमने बैचलर्स किया, क्यों किया, पैसे कोई नॉर्मल जगह से कर लेते, पैसे क्यों इतने लगाए महंगी जगह जाके, या फिर हमने मास्टर्स क्यों किया, वी स्पेंड सो मच मनी, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ये सब आपकी प्रोफाइल में ऐड कर रहा होता है, एंड यू वुडंट प्रॉब्ली रियलाइज इट. बट जब आप एक जगह से ग्रेजुएट होते हैं, या आप एक कम्युनिटी से निकल के आते हैं, या आप किसी कंपनी से काम करके निकला था, आप एक ग्रूम्ड बंदे होते हैं, और उस ग्रूम्ड बंदे को एक्चुअली ढूंढ रही होती है कंपनी, बिकॉज वो उस चीज़ में इतना एफर्ट नहीं डालना चाह रही होती कि मैं सबको ट्रेन करूँ, सबको फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करूँ.
that is one of the reasons why you would see people from top 3, top 4 universities in Pakistan being hired instantly, and the rest. And that applies probably in US as well, or even Canada as well. कि आपकी जो top universities होती हैं, which are more expensive as well, उनके students की grooming, उनके students की extra curriculars, quality of education, teachers, the kind of pressure they have to go through to get good grades, वो सब उनकी amalgamation होती है. पर खैर मेरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड से निकाल दें कि इसके बाद में क्वेश्चंस बहुत सारे को नैन ने शेयर किए हैं, तो विशाल आंसर अपने माइंड से निकाल दें कि सिर्फ अप्लाई करने से जॉब लगती है, या फिर मैं उमर को या किसी और को जो एचआर में काम करते हैं उनको सीवी दे दूंगा तो फिर मेरी जॉब लग जाएगी. ऐसा नहीं है. So the magic 6, the first point is your resume. So एक second. So there are some people in the waiting room. मैं उनको साथ साथ Kunan, can you make them join? Yeah, waiting room. So I am as they're coming in. No, I'm saying that there's some people. Are you the co-host as well? Right? Yes, I can see them. Yeah, वो कुछ लोग waiting room में हैं, तो if you can just enable them to join. Okay. Yeah, so the first thing is your resume. Your resume is your brief summary, normally covered in 1 page or max 2 pages. 1 page अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, and definitely 1 page पर रखें. और अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा extra curriculars या professional experience हैं which you really want to show, then take it to 2 pages. But I wouldn't recommend more than that. There are people who write 10 to 15 pages of resume. No one really has the time to look at it. Now we have a lot of companies have softwares, but उस सॉफ्टवेयर से भी आपको जो ज़्यादा आप ये सोचें ना, एक रिक्रूटर है उसको 100-200 सीवीज देखनी है, तो वो जब ये देखता है यार एक बंदे को अपनी सीवी बनाना नहीं आती थी, तो ये कंपनी में आके क्या करेगा, समझ रहे हैं आप. तो वो आपकी इंस्टेंट जो है ना आपकी एक इमेज बन जाती है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ योर रेज्यूमे के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं हाउ यू कैन मेक द आइडियल रेज्यूमे. मैंने इसकी जो भी मैं मैजिक 6 की जो 6 अभी चीज़ें बताऊंगा, वो सब की स्पेसिफिक वीडियोस जो हैं वो मैंने चैनल पे रखी हुई हैं डिटेल में, और उसमें ऑब्वियसली लोगों ने लाइव सेशंस मैंने किए तो उसमें क्वेश्चंस भी हैं जिसमें लोगों के आंसर होते रहते हैं. सो व्हेनेवर यू हैव टाइम, व्हेनेवर यू आर वो बड़े सेशन हैं, थोड़े घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कुछ मैंने समराइज करके 6-6, 7-7 मिनट के भी किए हुए. बट वो घंटा 2 घंटा आपके करियर में कितना फ़ायदा देता है उसके हिसाब से आप वो घंटा 2 घंटा लगा लें तो आपके लिए अच्छा होगा. नेटफ्लिक्स को भी हम लगा ही लेते हैं 3-4 घंटे अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, तो अपने करियर के लिए 1 घंटा 2 घंटा तो लगा ही सकते हैं. ठीक है, अगर कुछ नहीं तो कभी ड्राइव करते हुए, कभी जॉग करते हुए डाउनलोड कर लें और उसको ऑन कर लें और उसको सुनते रहें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. खैर, सो रेज्यूमे में नॉर्मली क्या होता है, लोग नंबर ऑफ पेजेस एक्सीड कर जाते हैं, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स ठीक तरह नहीं करते, और अपने अवार्ड्स को ठीक तरह आइडेंटिफाई नहीं, अपने हॉबीज़ को नहीं बताते, अपनी जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं उसको उस पर जेडी लिख देते हैं कि यार ये मैं कंपनी में ये करता था. उसको नहीं सुनना दूसरे बंदे को जेडी का, उसको चाहिए आपकी अकॉम्प्लिशमेंट क्या थी इस जॉब में. अगर मैं डेप्यूटी मैनेजर एचआर हूँ, एचआर बीपी हूँ इंग्रो में, सो एवरीवन द अदर पर्सन प्रॉब्ली नोज कि मेरा काम का स्कोप क्या है, बट व्हाट आई रियली वांट टू टेल द अदर पर्सन थ्रू दैट. देखें, एवरेज टाइम ना 4-5 सेकंड होता है दुनिया का, जो एवरेज है एक रिक्रूटर जो रेज्यूमे देखता है. अब मुझे नहीं पता क्यों होता है इस तरह, होना नहीं चाहिए बट है ऐसे. तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपके रेज्यूमे में इतना काम नहीं किया हुआ तो आपका रेज्यूमे कितना जल्दी, आपको रेज्यूमे में वो जितनी देर लगा रहा है 5 सेकंड, उसको फ़ौरन दिखना चाहिए कि यार कुछ इसने अचीवमेंट्स लिखी हैं. सो फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक इन नंबर्स कि एक होता है तरीका बोलने का कि यार आई वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स इन एंग्रो. ठीक है, और इसी को मैं रिफ्रेश करके लिखूँ, आई डिज़ाइंड एंड एग्जीक्यूटेड 6 customized trainings worth $1 million and covering 2,000 participants. देख रहे हैं इफेक्ट कितना डिफरेंट आ रहा है. सो ऑलवेज टॉक इन नंबर्स. जो आपका, मैं अभी आपको बल्कि अपना ही रेज्यूमे दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि मैं
जो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, what exactly am I trying to say? Just give me a second. Okay, share screen. Share. Yeah. So this is my resume. What I'm trying to say, मैं इसको so this is the section जहाँ मैं लोग अपने यहाँ पे complete details, address, उमर, आपकी स्क्रीन जो है वो शेयर resume वाली नहीं हुई भी. This is a browser that you're sharing. You might want to share the resume. I think मैंने I hope you guys can see this now. Yes, it's perfect. Okay, so yeah, please go. Where is it? So this section, the objective, a lot of people, they don't write this. They think so मैं आपको बताता हूँ जो मैं as an HR person मेरे पास resume आता है ना, this is the main section. This half. इसी में जो है ना आपको थोड़ा बहुत बंदे का आइडिया हो जाता है. देखें, रिक्रूटर सबसे पहले क्या देखता है, उसके माइंड में ऑलरेडी होता है मुझे प्रोफाइल किस तरीके की चाहिए, एजुकेशन क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, किस कंपनी में काम कर रहा था, किधर रहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक यू नो दे ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ यू, दे बेसिकली ट्राइंग टू जज यू, एंड इन दैट जजमेंट आपको अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है. सो इफ़ यू सी, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें अपनी एजुकेशन नहीं शेयर करनी शुरू में, हम वी डोंट थिंक दैट्स आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सो वो क्या करते हैं उसको एंड में ले जाते हैं, दैट्स फाइन. कुछ लोग कहते हैं यार हमें डायरेक्ट अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जाना बिकॉज वी थिंक दैट्स मोर रेलिवेंट एंड वी वांट द रिक्रूटर टू यू नो गिव अस मोर टाइम, तो वो डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं. सो दैट्स अप टू यू. मेरे हिसाब से मेरा एजुकेशन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सो आई ऑलवेज कीप इट इन द फोर फ्रंट. मैं अपना ऑब्जेक्टिव भी लिखता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई लुकिंग फॉर, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, एंड देन फिर आपका सेक्शन आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस. अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जो मैं आपको नंबर्स का बता रहा था, सो दिस इज द सेक्शन जहाँ आप देखेंगे मैंने आई put in numbers to show the magnitude of the work that I'm doing and what exactly the scope of my work is. आप देखेंगे यहाँ पर जेडी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा कि अच्छा जो ऑफिस में जेडी होती है ना 2 पेज की कि आपने ये करना है, ये टास्क नहीं है. आई पुट इन एफर्ट टू आइडेंटिफाई, जैसे मैंने यहाँ बजट लिखा हुआ है, मैं कितना बजट संभाल रहा हूँ, थिंग्स लाइक दिस गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू योर रोल. और हमेशा इसको नंबर्स में हमेशा बात करें, किसी से वर्बली किसी को इंटरव्यू में बात करें ना, ऑलवेज टॉक इन नंबर्स कि यार बिकॉज ऑफ योर एक्शन, बिकॉज ऑफ योर वर्क, हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी, व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट यू आर मेकिंग. हम लोग स्टोरीज में चले जाते हैं जिसकी वजह से बंदा भी बोर हो जाता है और आपको दैट्स व्हाई देन यू नेवर कॉल्ड बैक बिकॉज दे नॉट एबल टू डिसाइफर कि अच्छा यार इस बंदे का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था. सो आफ्टर द प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस मैंने ऑनर्स एंड अवार्ड्स डाले हुए हैं. This is very important because they want to see what exactly have you done apart from just working in office. So that can be anything, that can be certifications, awards, in office or academic honors, especially certifications. So if you see मैंने यहाँ CIPD UK certification डाली हुई. CIPD is an HR global HR body recognized globally, which can be beneficial in any job that I applied. स्किल्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मली पीपल डोंट पे लॉट ऑफ हीड टू इट. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? हमेशा 5-6 स्किल्स डाला करें. ये जो है ना बेसिकली नैरो डाउन कर देता है रिक्रूटर के लिए, जब वो सोच रहा होता है ना कि यार अच्छा मुझे इस बंदे की टॉप 3-4 चीज़ें क्या हैं, कौन सी स्किल है जो मैं ढूंढ रहा था और इस बंदे ने लिखी हुई है एंड आई थिंक दिस विल बी द राइट फिट. अब लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड CV बना के ना भेज देते हैं सबको, कॉपी पेस्ट सबको 100 लोगों को भेज दी. दे डोंट रियलाइज कि व्हाट एग्जैक्टली इज द JD's रिक्वायरमेंट.
जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब पोस्ट हुई हुई है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट में लिखा होता है हमें इस बंदे की ये स्किल चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए। अब मैं रिवॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल कोई रिवॉर्ड्स की जॉब है, मैं उसमें ट्रेनिंग एंड ओटी का एक्सपीरियंस अपना शेयर करके आगे भेज दूँ, मैं इसको, ये इतना ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है तो मैं इसको जंबल आउट ना करूँ। If I am smart, I would probably put more content in the rewards experience that I have and put less content in the training experience that I have, so that रिक्रूटर का दिमाग सिर्फ उधर ही रहे कि यार अच्छा इस बंदे जो मुझे चाहिए वो इस बंदे के पास है। एंड लास्ट, हॉबीज। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस शोज द ह्यूमन साइड ऑफ यू। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब आपने जो भी टेम्पलेट लेना है वो आपकी मर्जी है, टेम्पलेट पे कोई ऐसा ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ऑब्वियसली आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रेज्यूमे है। आप नेचुरली अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अप्लाई कर रहा है या फिर कोई आर्ट्स का बंदा कर रहा है, वो थोड़ा सा अपना आर्ट्स ही बनाएगा रेज्यूमे। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में ये दिया गया था, आई थिंक आईबी में भी ये फॉलो, इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। जस्ट कीप इट सिंपल बिकॉज जितने आप कलर्स ऐड करेंगे ना उतना जजमेंट अफेक्ट करेंगे आप रिक्रूटर की। तो हो सकता है आपको जो कलर पसंद हो वो दूसरे के लिए बहुत अजीब सा कलर हो। तो इसमें तो कोई उस तरह की जजमेंट है ना, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट है। गेट इट? इसकी अगर आपको डिटेल में, मैंने एक रेज्यूमे राइटिंग सेशन किया था ऑन यूट्यूब in which people shared their resumes and I fixed them on the spot. So you can check that and you can probably get an idea कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है? Okay, let me just check the comments. Yeah, so this was the first thing, resume. Second, your interview skills. Now interview skills as an HR professional मेरे साथ होता ही है कि लोग आते हैं, they're not prepared for the position that they're applying for, they don't know anything about the company. That leaves a very bad impression. They don't focus on what they're wearing to the interview or how they're smelling. कुछ लोग सिगरेट पी के फौरन कमरे में आ जाते हैं। मतलब ये दिस अफेक्ट्स, वो सिर्फ आप अप्लाई करने नहीं आए हैं, आपके साथ 10-15-20 लोग और हैं। एंड नेचुरली जब आप एक रिक्रूटर आपको लाइक नहीं कर रहा होता या आपका ऑरा नहीं लाइक कर रहा होता तो नेचुरली एक एज आपका चला जाता है। देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल इम्प्रेस करने के लिए इंटरव्यू। मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली योर इंटरव्यू में आपका बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं इन विच यू आर गिवन सिचुएशंस। Describe a crisis situation that you dealt with. Describe a time when you had to play, you had to be a team player, you had to work as a leader. So ये सारी सिचुएशन। तो अब इसको आंसर कैसे करते हैं? You know, always describe the situation कि अच्छा सिचुएशन क्या थी, and then describe what was your action, situation, action, and then the third is impact. What impact did it have? आपके एक्शन ने क्या फ़र्क किया? So अगर आपसे कोई पूछता है, मुझसे कोई पूछता है describe a situation when you had to work as a leader, so I would say okay, the situation was I was tasked to manage Pakistan's largest drama festival in Lums. My role was to handle 13 department heads and around 2.5 million in sponsorships and 4,000 audience, and I had to do this in 3 months, and I did it, and the impact was that it was the most successful and most financially and commercially and quality wise as well the successful drama festival ever held, and my effort was applauded by the seniors as well. तो देखिए, मैंने बजाय इसके कि मैं एक स्टोरी देता कि कहाँ से बात शुरू हुई, कि जून में मुझे ये दिया, जुलाई में ये हुआ, मैंने सीधी बात की, भाई ये सिचुएशन थी, ये मेरा रोल था और ये उसका इम्पैक्ट था, और मैंने नंबर्स में बात की ताकि नंबर्स हमेशा दूसरे बंदे को ना याद रह जाता है। नंबर्स लाइक फाइनेंशियल नंबर्स, हाउ मेनी पीपल आर यू लीडिंग, इस तरह की चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं। ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन होता है व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। इसकी डिटेल में अगर आपको चाहिए,
अगेन आई हैव वीडियोस ऑन यूट्यूब जिधर आप जाके देख सकते हैं. एंड इफ़ यू नो फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में सबसे कॉमन सवाल, जो सबसे पहला सवाल होता है, वॉक मी थ्रू योर CV और डिस्क्राइब योरसेल्फ, एंड पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड, कुछ लोग नहीं होते. और वहीं से आपका चांस होता है आपकी हाईलाइट करने का कि यार मैं क्या चीज़ें इनको 1.5 मिनट में बताऊं जो स्टिक कर जाए और वहीं मुझे रोक लें और वहीं से मुझे सवाल पूछना शुरू कर दें, ताकि मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे. इंटरव्यू देखें आधा पौना घंटा होगा ना मैक्स, तो आधे पौने घंटे में आप लीड कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन अगर आप उनको लीडिंग पॉइंट्स दें. आप बोल दें यार मैं लम्स गया था, आप बोल दें यार मैं इस कंपनी में मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, मैंने इस कंपनी में इतने पैसे कमा के दिए थे कंपनी को, कुछ भी, ताकि वो उस हॉबीज डिस्कस कर लें. तो हॉबी पे भी वो कभी कभी रोक लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम ना इन रिक्रूटर जज कर रहे होता है कि इस बंदे को हम रखें ना रखें, किस तरह का इसका बैकग्राउंड है. ठीक है. द थर्ड थिंग इज योर बीइंग अ कल्चरल फिट. So what it means is for any company there is a culture, for any country there is a culture. आपके घर का एक कल्चर होता है, आपकी फैमिली का एक कल्चर होता है, दोस्तों का होता है, इसी तरह कंपनी का कल्चर होता है. रिक्रूटर जब हायर कर रहा होता है ना, वो देखता है यार ये मेरे कल्चर में फिट होगा या नहीं होगा, बिकॉज रिक्रूटमेंट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. रिक्रूटमेंट का मतलब है एक बंदे को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप अपनी कंपनी अपने घर में बुला रहे हैं, तो आप उसको निकाल नहीं सकते आराम से. आपने उसको इन्वाइट कर लिया तो आपने बहुत केयरफुली उसको हायर करना है, हर चीज़ एंगल देख के. सो कल्चरल फिट वाला एलिमेंट क्या होता है? पहली चीज़ होती है कंपनी की कॉम्पिटेंसीज और वैल्यूज़ क्या हैं. अगर वो आपकी वैल्यूज़ और कॉम्पिटेंसी से मैच नहीं करते तो फिर आप नहीं हायर होंगे उस कंपनी. एज सिंपल एज दैट. सेकेंड, an often ignored thing, your the way you carry yourself, your personality, the way you dress up, your hygiene, it already adds up. अगर कंपनी की एक अब फॉर एग्जांपल बैंक है, आप बैंक में टी शर्ट और पैंट पहन के अगर जाना शुरू हो गए या इंटरव्यू में जाए, आपको वो रिजेक्ट कर देंगे. बैंक का कल्चर है सूट पहन के, टाई पहन के, स्पेशली कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. सो यू कांट डू दैट ओवर देयर. अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे वो आपको वैसे ही जज करेंगे कि अच्छा यार इस बंदे को इतना इज नॉट वेल ग्रूम्ड to be in this company, we'll have to spend a lot of time on this person, so maybe go for someone who knows. ठीक है. So how to wear a suit, how to wear all. मैं हमेशा वाइट ड्रेस शर्ट पहन के जाता हूँ इंटरव्यूज में, बिकॉज दैट्स मुझे लगता है उस पर जजमेंट ज़्यादा नहीं हो सकती. आप रेड पहनो, ब्लू पहनो, कुछ भी पहनो, नेवी ब्लू हो गया, वाइट हो गया, दीज आर नॉर्मल कलर्स. लाइक आई वुडंट वेयर, लाइक आई वुड चेक कि कंपनी का कल्चर क्या है. बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं उधर पैंट शर्ट सूट नहीं होता, उधर नॉर्मल होता है, तो यू कैन गो इन अ पोलो एंड गिव एन इंटरव्यू ओवर देयर. So you're being a cultural fit is really important. अगर आप किसी आप बोलते हैं मुझे PNG ज्वाइन करना है, आप पहले उसका कल्चर देखें, आप कॉम्पिटेंसीज देखें, आप वैल्यूज देखें, आर यू अलाइंड विद देम. फोर्थ थिंग इज योर टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स. टेक्निकल तो देखें जो आपकी डिग्री है, आपका डिप्लोमा है, आपके सर्टिफिकेशंस हैं. द सॉफ्ट स्किल्स पार्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जो लोग इतना एम्फेसिस नहीं देते. सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है? योर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, योर leadership skills, adaptability, entrepreneurial skills, ability to think about the company and colleagues, emotional intelligence, presentation skills, communication skills, self-confidence, self-awareness. अब ये इन चीज़ों पे आप नॉर्मली बैठ के सोचते नहीं है इतना, बट सोचना चाहिए. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करियर में आगे जाने के लिए. अब मैं इसको आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ, मैं एंग्रो में काम करता हूँ, which is a premium organization in Pakistan. It's one of the best places to work at. And our annual appraisal, जिस पे हमारा करियर डिपेंड करता है, हमारा बोनस, हमारा रेटिंग होती है साल की, that is 50% our technical objectives. हमें दिए जाते हैं साल में तुम्हें ये काम करना है. 50% is the soft skills. उसमें ये भी होता है 360 फीडबैक भी होता है कि पीयर्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, इन कॉम्पिटेंसीज के बारे में. और अगर किसी में भी आपका अच्छा नहीं आता तो आपका करियर इम्पैक्ट होता है. सो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है आपके करियर में आगे बढ़ने की. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप इसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी आती हैं, कि
हाउ वेल वर्स्ड आर यू इन इंग्लिश. अगर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि you have to pitch something to foreign vendors or foreign clients, so you can't go to that company and say I love Pakistan and my mother maiden language is Urdu, I won't speak in English. मैं नहीं बात कर रहा, ऐसे तो नहीं होता. बहुत सारे लोग मैं लिंक्डइन में डालता हूँ कि यार इंग्लिश, आई ऑलवेज से इंग्लिश इज नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, बट इंग्लिश इज अ नेसेसिटी बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज. इसमें ईगो की बात नहीं है कि मैं इंग्लिश क्यों बात करूँ. अगर आपकी कंपनी में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन डील विद अदर पीपल आउटसाइड. आपने हमेशा अपनी कंपनी अपने क्लोज ग्रुप में नहीं रहना है. अगर आपने बड़ा बनना है, आपने सीईओ बनना है, कंपनी की एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाना है, सो यू रिप्रेजेंटिंग द कंपनी ग्लोबली. सो इफ़ यू आर नॉट वेल वर्स्ड, आप क्या जर्मनी में जाके उर्दू में बात करेंगे? उन्हें बोलेंगे नहीं और हमसे उर्दू में बात करें. सो जस्ट मेक श्योर दैट अगर नहीं है आपके एट दैट लेवल, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इफ़ यू वांट टू रीच दीज ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. फिफ्थ इज योर नेटवर्किंग स्किल्स. नेटवर्किंग कहाँ से होती है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा होती है लिंक्डइन के थ्रू. लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस बहुत लोगों को इतनी आइडिया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट अब शायद होने लग गई है पिछले 1-1.5 साल में, जब से मैंने सेशंस वगैरह किए हैं. लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन written to me that they never really gave LinkedIn that much importance, but I think generally we लोग they're becoming more aware, but अभी भी खैर बहुत हम पीछे हैं. पाकिस्तान में 60 million इंटरनेट यूजर्स हैं एंड ओनली 6 million लिंक्डइन पे हैं. उसमें 6 million में से भी आई थिंक 5-10% ही होंगे जो सही से यूज़ करते होंगे, बाकी यूजलेस फेसबुक और इंस्टा की चीज़ें डाल रहे होते हैं. सो लिंक्डइन के थ्रू आप नेटवर्क अपना बढ़ा सकते हैं, बिकॉज लिंक्डइन के पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है. आप दुबई में भी किसी से चल कर सकते हैं, आप जर्मनी में कर सकते हैं. थ्रू माई लिंक्डइन नेटवर्क आई रीच अराउंड 120,000 पीपल. तो मेरे पर पोस्ट 1 लाख 2 लाख व्यूज़ हो जाते हैं. एंड द रीज़न फॉर टेलिंग यू दैट इज़ कि मैं कोई पैसे नहीं डाल रहा हूँ इस चीज़ में, मैं सिर्फ अपना एफर्ट, अपना माइंड डाल रहा हूँ. सो मेरा एफर्ट और माइंड डालने की वजह से आज अगर हम ये सेशन भी कर रहे हैं, देन प्रॉब्ली दिस लिंक्डइन हैज़ अ रोल टू प्ले इन इट, बिकॉज कुनैन ने कहीं से देखा होगा, उन्होंने अप्रोच किया होगा कि अच्छा सही ये चीज़ है. सो इसी तरह मेरे जो दूसरे सेशंस होते हैं, तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई, सही है मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं लोगों की ज़्यादा HR रिलेटेड हेल्प और कंपनी रिलेटेड और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कर सकता हूँ. बट वट एवर योर स्किल इज, यू कैन बी अ मास्टर ऑफ इट एंड देन यू कैन गेट लाइक माइंडेड पीपल टू फॉलो यू एंड बी कनेक्टेड विद यू ऑन लिंक्डइन. एंड देन यू बिकम ऑब्वियसली ग्लोबली आपकी मार्केट ही मार्केट है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया हु आई स्पीक टू. सो मतलब मैं उनको भी यही चीज़ें बता रहा होता हूँ, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस आप देखें ना कि आपके ऑनलाइन रेज्यूमे पड़ा. गॉन आर द डेज जब आप पेपर में प्रिंट करके कंपनीज में छोड़ के आते थे कि यार मुझे प्लीज़ मेरा रेज्यूमे देखिए. बैठे बैठे अगर किसी को आपकी प्रोफाइल देखनी, बैठे बैठे आपके प्रोफाइल में जाएगा, लिंक्डइन पे आपको देखेगा, अगर समझ आएगा तो दे विल कनेक्ट. एंड द लास्ट थिंग, द सिक्स्थ थिंग इज योर सेल्फ, योर ब्रांडिंग. आर यू अ ब्रांड ऑन सोशल मीडिया? अब नेटवर्किंग जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया, दैट वाज कनेक्टिंग विद पीपल, making connections on LinkedIn. This point is making a brand out of yourself. How do you make a brand? You get that you master your skill and you regularly post, you debate, and आप अपना एक नीश बना लो कि यार अच्छा आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर में टॉप के बंदे हो, आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो आप प्रॉपर्टी में टॉप के हो, आप मॉडल हो तो आप टॉप के मॉडल, मतलब अपने प्रोफेशन में आप टॉप बनो एंड देन मेक अ ब्रांड. तो आप कैसे बनते हैं? इसमें नेटवर्किंग का रोल आता है, आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, बट ऑलवेज यू शेयर योर ओपिनियंस. बिकॉज ये मत भूलेंगे लिंक्डइन में भी बहुत लोग बैठे हैं जो कनेक्शंस अपने बढ़ाए जा रहे हैं, बट उनके कनेक्शंस 50,000 हो जाते हैं, बट उनकी इंगेजमेंट इतनी नहीं होती. और वो इस वजह नहीं होती बिकॉज दे डोंट हैव एनी वैल्यूबल थिंग टू शेयर. आप वैल्यू दोगे लोगों को तो वो आपको फॉलो करेंगे. पीपल आर नॉट स्टूपिड, स्पेशली ऑन लिंक्डइन. पढ़े लिखे और मतलब कुछ तो पढ़े हुए और कुछ वो होते हैं ना. फेसबुक और इंस्टा पे तो एंटरटेनमेंट बेस्ड लोग ज़्यादा होते हैं. ठीक है. सो द 6 थिंग्स आर resume, your interview skills, your being cultural fit, your technical and soft skills, your networking ability and your self branding. You master these things. देखिए मैं 7th पॉइंट भी डाल सकता था, luck, which I believe in,
बट आई ऑल्सो बिलीव इन कि जो बंदा इंसान अपनी ज़िंदगी में लक पर डिपेंड करके आगे बढ़ता है वो उसका कुछ नहीं हो सकता. सो वी डिस्काउंट दैट. इसके अलावा ऑब्वियसली लक है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है, कुछ चीज़ें आपको लिखी भी होती हैं, डेस्टिनी होती हैं, कब मिलनी है कब नहीं मिलनी. सो वो आप उन फैक्टर्स को साइड पे कर दें, अपनी नीयत साफ रखें और आप इस चीज़ पे, इन 6 चीज़ों पर मेहनत करें. एंड डेफिनेटली आपकी जॉब इंटरव्यूज़ और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत फ़र्क आएगा. एंड इस पर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा. मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपना बिहेवियर चेंज लाना होगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें रेज्यूमे, नेटवर्किंग, इसमें आप अपना टाइम फ़ौरन फ़ौरन कर सकते हैं. ठीक है. Yeah, so Quran, these were the 6 things, the magic 6, and I think we can move to the questions right now because मैंने जो Yes. questions देखे थे ना उसमें काफी नई चीजें cover हो रही थी. So yeah. ठीक है. अच्छा उमर, आई थिंक इट वाज एक्सट्रीमली फैंटास्टिक सेशन ऑनेस्टली. मुझे इतनी सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से और आपके जो पॉइंट्स हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज हियरिंग इट एंड सीखने को मिली. एंड आई एम श्योर द ऑडियंस मस्ट हैव फाउंड इट क्वाइट इंसाइटफुल एज वेल. एक जो चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे पूछना चाहूँगा, which I'm sure could resonate with a lot of our audience members as well today, कि how do people overcome their hesitation, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात की थी नेटवर्किंग के हवाले से कि like you need to reach out, you need to connect with people, you need to get your brand out there, let people know what you know so that they can connect with you and therefore they can find the opportunities for themselves. अब like मेरा जो इंटरेक्शन रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ मेनली, they have the right toolkit, they have the right grades, they have the right education, but they're kind of not confident enough to even approach people through LinkedIn or even like let alone approaching in person. So how can one overcome that barrier of hesitation, reluctance, and so that they're able to completely put themselves out there in front of the market and be able to achieve their goals? देखिए कुनैन, फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच इज़ चैलेंजिंग उसका सिंपल सोल्यूशन नहीं होता है, जस्ट कीप डूइंग इट. मतलब आप स्विमिंग जिसको नहीं आती है उसको पानी में फेंक देते हैं, जिसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है उसको और पब्लिक स्पीकिंग करवाते हैं, वो 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा करने के बाद यूज्ड टू हो जाता है. जिसको स्काई डाइविंग नहीं आती है उसको 3-4 दफ़ा करवाते हैं, वो स्काई डाइविंग करना शुरू हो जाता है. सो आई थिंक फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड इफ दिस इज़ अ हर्डल, आप वो चीज़ और करो. So for example, if you are not able to reach people, probably that's because you don't know what to say to them. एक तो ये reason हो सकता है ना. So maybe just for example, if people reach out to me, normally बहुत ज़्यादा लोग अगर direct हो जाते हैं मैं उनको इतना जल्दी जवाब नहीं देता, because I'm like यार मैं already busy हूँ, ऊपर से आप मेरे को और भी मतलब you have to, as a recruiter you have to see कि मैं किसको वो एक्स्ट्रा लेवरेज दूँ. यू नॉट, मतलब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने एक तरीका बनाया हुआ है अप्लाई करने का, बट अगर उस तरीके से हट के आउटसाइड द मेथड कोई आता है, देन इट्स योर प्रेरोगेटिव, आप उसको हेल्प करना चाहो या नहीं. बट अगर मैं कब हेल्प करूँगा, मैं अपने लिंक्डइन में कब लोगों को हेल्प करता हूँ, व्हेन दे interact with me, when they show me their other side as well. I don't feel कि यार मैं बस CV भेजने के लिए रह गया हूँ, मतलब जिसका दिल आता है CV भेज देता है कि यार right. So I would say learn how to interact with them, connect with them, participate in their post. आप यकीन करें 5-10 दफ़ा आप पार्टिसिपेट करेंगे ना दूसरे बंदे को, बाय फेस सबकॉन्शियसली याद हो जाएगा यार ये बंदा हर दफ़ा पोस्ट करता है और अच्छी बात लिखता है. मेरे इतने ज़्यादा जानने वाले हैं जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं हूँ, बट मैं उनको आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करता हूँ क्योंकि वो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं मेरे पोस्ट पे. आई एम लाइक यार ये बड़े अच्छे बंदे हैं, आपकी दिल से आता है कि यार चलो हेल्प कर देते हैं, मेरे कौन सा लाइक, एंड आपका सबकॉन्शियसली यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स हेल्पिंग देम. तो रात को भी मुझे कभी 2 बजे भी मैसेज करने लिंक्डइन पे, आई रिप्लाई टू देम. आई एम लाइक कोई बात नहीं यार, अच्छे लोग, यू गेट इट. सो
हर रिक्रूटर भी इंसान ही होता है. अप्रोच देम, ट्राई नॉट टू बी टू डायरेक्ट इन द फर्स्ट इंटरेक्शन. एंड अगर आपको होना ही है डायरेक्ट और टाइम कम है, फिर आप एक अपना इंट्रो दें और आप अपना बताएं कि मैं व्हाट एम आई लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एंड और रिक्वेस्ट करें कि यार प्लीज़ इफ़ यू कैन हेल्प मी दैट वुड बी ग्रेट, दिस दैट, इस तरह. ये जो लोग डायरेक्ट करते हैं प्लीज़ गेट मी अ जॉब, प्लीज़ गेट मी अ जॉब, फिर उसका क्वेश्चन मार्क्स भेजते हैं, व्हाई हैवंट यू गॉटन मी अ जॉब येट. अब मैं कहता हूँ यार पहली बात किसी के हाथ में, मेरे हाथ में जॉब नहीं, जिसका बिजनेस ओनर है उसके हाथ में जॉब है. मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, फैसिलिटेट कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी जॉब मैं उस बंदे के साथ. सो आई थिंक हेजिटेशन आप शुरू हो जाएं, जो भी जिनको भी हेजिटेशन होती है, और इवेंचुअली आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाए, बट तरीके से इंटरेक्ट विद. मतलब persistence and constant engagement shall Yeah, get you there. method should be different. Method should not be to inbox them and bother them after every 2 days. Method should be to make an association with them, network with them, and share चलो your जबरदस्त. ideas, participate with them, and then try to take favors from them. डायरेक्ट फेवर से मत चले जाया करें, क्योंकि आप नहीं सिर्फ फेवर मांग रहे, हजार और लोग मांग रहे हैं उनसे. चले जबरदस्त उमर. सो आई थिंक हम लोग सवालों के सिलसिला इस तरह स्टार्ट करते हैं कि we'll take one question from the audience, one question from the chat, and then one question that we received through your registration forms. So if so there are a couple of questions in the chat box. So Bilal is asking to you, Umar, what were the key challenges you faced when you were starting your LinkedIn networking or interaction with professionals, and how to cope up with that? ठीक है. सिंस आई थिंक 6 o'clock का हमने टाइम दिया था ना, सो 40-25 मैं जल्दी जल्दी टू द पॉइंट बात करता हूँ. बिलाल, मुझे चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि द पीपल अराउंड मी, अब मैं 2014 की बात करूँ, पीपल अराउंड मी डिडंट यूज़ लिंक्डइन एट ऑल. माय फ्रेंड्स नेवर यूज़ लिंक्डइन. अब मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस ड्राइव्स जो कंपनीज आगे करती हैं उससे जॉब मिल गई थी, और बहुत सारे लोग उससे मिल जाती है लम्स में. सो हम लोग इतना लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं थे, और सबको ये लगता था कि यार लिंक्डइन का मतलब तो सिर्फ जॉब लेना ही है. सो व्हेन आई यूज्ड टू पोस्ट, पीपल यूज्ड टू मेक फन, पीपल यूज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट्स एंड बी लाइक यार ये देखो आज इसने क्या लिखा है. एंड ये एक चैलेंज था, बट आई टुक इट लाइटली. लेकिन लाइफ में आप, मेरा क्योंकि विजन था, मेरा विजन ये था कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ, आई शेयर माई थॉट्स, आई हेल्प पीपल. मेरा विजन इंटैक्ट था. सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन क्या कर रहा है. वहीं लोग, मतलब मुझे याद है जब मेरे शुरू के पोस्ट होते थे, हार्डली कोई इंगेजमेंट होती थी, कभी कभी ज़ीरो होती थी. एंड पीपल यूज्ड टू बी लाइक यार तुम क्यों कर रहे हो. एंड देन इवेंचुअली आफ्टर द सेम पीपल ऑफ last year they were messaging me, some of them were abroad, they're moving back, they're like, Umar, can you just post our resume on your LinkedIn, we're finding a job. Those same people used to make fun. तो मैं आपको बताने की मेरा मकसद ये है कि ये अपना विजन अपना ठीक रखें कि आप LinkedIn क्यों यूज़ करना चाहते हैं. नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं. और अगर आपको सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि लोग आपको आके बोलेंगे आगे कि यार ये क्या कर रहे हो, क्यों ये, और आपको कभी कभी, बाय द वे मेरे 6-7वां साल है लिंक्डइन पे प्रॉपर एक्टिव होते थे, तो 7 साल लगे हैं आप पहुँचने में. सो ये इस चीज़ पे कभी डीमोटिवेट ना होइएगा यार मैं तो कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता, कोई कमेंट नहीं करता. ऐसे नहीं होता. आप वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग कमेंट करेंगे. वैल्यू ऐड नहीं, और ज़रूरी नहीं आप HR के हों वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड के हों, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे. आप इंजीनियर हैं तो आप दूसरे इंजीनियर्स को लीड कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है जी. अच्छा, next question we have is from Fazla Iqbal. वो पूछ रही हैं कि how to excel in job assessment tests. She thinks कि sometimes having soft skills and hard skills required for job, and I have perfect resume but I do not make it to the next round due to assessment test. I think should be simple. फाजला, असेसमेंट टेस्ट अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं वो क्या लेते हैं, बट नॉर्मली बेसिक मैथ्स, IQ एंड इंग्लिश. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर देम, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप GRE की बेसिक बुक्स या SAT की बेसिक बुक्स में प्रैक्टिस करें.
क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बहुत सारे लिए जाते हैं। अब तो गेमिफिकेशन टेस्ट आ गए हैं, तो उसमें भी आपकी यही लॉजिक यही यूज़ हो रहा होता है। सो देयर पॉइंट इज असेसमेंट टेस्ट लेने का कि आप अपनी कंपनी में एक सर्टेन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जो बेसिक मैथ और बेसिक आईक्यू ना, ये बहुत मतलब ये आप चाहते हैं कि सब में हो। यू डोंट वांट पीपल with very low level of IQ in your company, and it is the company's prerogative। इसमें कोई गलत और सही बात नहीं है। तो आप अगर IQ और ये चीज़ें जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकती हैं और आप इम्प्रूव कर सकती हैं। मैं अब फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी टेस्ट होता है, PNG में पर्सनालिटी टेस्ट होता है। A lot of great candidates they're not able to clear PNG assessment because वो personality assessment का point ये होता है they match your values to their values उस टेस्ट की बेसिस पे, और अगर वो नहीं मैच होती दे रिजेक्ट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर नहीं मैच हो रही तो नहीं हो रही ना, सही है, जस्ट प्रैक्टिस जी। ग्रेट। अच्छा, तलहा पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माय करियर इफ माय जॉब इज नॉट रेलेवेंट विद माय एजुकेशन। How can I improve my career if my job is not relevant with my education? Oh, बड़ा वेग सा क्वेश्चन है, मैं I'm trying to understand it. I think skills development पे perhaps focus कर सकते हैं, right? कि if Talha is able to identify a job that he would like to pursue but that does not align with his education, so how can he get that job? तो perhaps skills development पे थोड़ा सा वो अपना focus कर सकते हैं कि अगर वो graphic designing की job में जाना चाहते हैं और वो medical की field से belong करते हैं, तो he can do some non-formal online courses available like Udemy पे या इस तरह करके, just to upskill and make himself presentable. चलें, moving on. Kiran Noshin Malik has a question. So she says, or she asks, okay, you talk about skills. A person have technical skills and his soft skills are weak. Then what should he or she do? Even he used to waste his time just for earning. Now, fortunately, he got an opportunity to join a great organization, but this weakness makes him hesitated to go for it. आई थिंक ये पूछने जा रही हैं कि सॉफ्ट स्किल्स अगर किसी के वीक हैं और एक अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अब क्या करना चाहिए, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स वीक हैं, सो दैट पर्सन इज बीइंग हेजिटेंट कि यार मैं जाऊँ इस कंपनी में अप्लाई। देखिए किरण, अगर सॉफ्ट स्किल्स अगर वीक हैं और उस पर अगर आपको एक्नॉलेज किया है कि वीक हैं और उस पर आपने काम किया है, सो अप्लाई करें। मतलब इसमें कोई ऐसी हेजिटेंट होने की क्या बात है, ज़्यादा वो रिजेक्ट कर देंगे। मतलब इसमें कोई वो तो नहीं है। आप इस तरह नहीं सोच, देखिए थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मेरी एक्नॉलेज मैंने की, मैंने उस पर काम किया एंड आई विल अप्लाई अगेन, दैट्स इट। इसके आगे हेजिटेंट क्यों हेजिटेंट, आपने कोई उनके पैसे देने हैं? मतलब आप अप्लाई करें, खुल के अप्लाई करें। मतलब लोग लाइफ में रिजेक्शन फेस करना इज एन आर्ट एंड यू शुड बी एबल टू फेस इट, बट ऑलवेज फेस रिजेक्शन। व्हेन यू फेस रिजेक्शन जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट कि ये क्यों हुआ है, ये मेरी गलती थी या नहीं थी, ये मेरे कंट्रोल में था या नहीं था। अगर आपके कंट्रोल में तो काम कर लें उसको, हेजिटेंट ना हो, बट एक्नॉलेज ज़रूर करेंगे था क्या, मसला क्या था। True. Okay, so I would like to take one question from जो हमें registration receive हुई थी उसमें उमर सबसे एक interesting question जो मुझे लगा था वो था it's basically about people with disabilities, right? तो मैंने खुद अपनी LinkedIn के ऊपर recently देखा था एक post जिसमें एक employee था, he's been working with the company for like I would say I don't know 10 odd years, and then suddenly he got a disability in his eye and then his company laid him off for that reason. तो काफी ज़्यादा शोर बचा, like that post got a lot of noise. Similar, like along the similar lines, one of the participants or registrants asked, I stammer from my childhood. Now I have covered it 80% very bravely, but sometimes I do stammering. So in the whole scenario, can I get job in like Engro, Fatma, etc.? And can I tell the interviewer before the start of the interview that I stammer? बिल्कुल। देखिए स्टैमर, आई नो सम पीपल हु
used to stammer and then they worked on it and they are working in good organizations. I'm glad कि you are working on it. मतलब you acknowledge कि अच्छा सही है, मैं आपकी अपनी तरफ से आप क्या एफर्ट उस पर डाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम देखिए मैं सब ऑर्गेनाइजेशंस की मतलब नहीं ले सकता गारंटी. एवरी जॉब्स नेचर, एवरी जॉब रिक्रूटर इज़ वेरी डिफरेंट, बट आई नो कि इंग्रो में इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती है कि यू नो इफ अ पर्सन इज स्टैमरिंग तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे जॉब. ऐसा कुछ नहीं. एंड यू शुड टेल द पर्सन, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं. बोले मैं स्टैमर करता हूँ. अब देखें जॉब की नेचर पे डिपेंड है. ऐसा जॉब की नेचर ऐसी है जिसमें पूरा दिन आपको बोलना है फॉर एग्जांपल, तो इट प्रोबेबली माइट बी अनकंफर्टेबल फॉर यू एज वेल. यू विल बी लाइक यार मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी. प्रोबेबली आई एम अ स्किल्ड पर्सन. आई कैन यूज माई माइंड, आई कैन डू मोर रिसर्च, आई कैन गिव प्रेजेंटेशंस. डिज़ाइनिंग का काम जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का जो काम होता है, बिजनेस डेवलपमेंट का जो काम होता है, मोर ऑफिस रिलेटेड वर्क इन विच यू डोंट हैव टू यू नो, अगर आपको अनकम्फर्टेबल हो रहा है फॉर एग्जांपल तो आपको वो ना करना पड़े. सो या तो कंपनीज़ की, मैं ऐसी कंपनीज़ अब होती होंगी कंपनीज पाकिस्तान में हज़ारों हैं, बट मैंने टॉप कंपनीज में ऐसा कोई कंडीशन नहीं देखी इन विच ये है. बट ऑब्वियसली अगर जॉब की नेचर पे सारा डिपेंड करता है. एंड एंड यू शुड टेल द पर्सन कि दिस इज़ समथिंग. आप स्टार्ट में बताना चाहें, आप इंटरव्यू के बीच में खुद ही मेंशन कर दें, या वो एंड में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनसे तब पूछ लें कि डज दिस इम्पैक्ट माई चांसेस ऑफ गेटिंग दिस जॉब. ये आपके ऊपर है, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. ग्रेट. अच्छा उमर, एक और common question tha rather, it's to do with Pakistanis, like Pakistanis who are returning back to Pakistan for good. So they're wondering if you can provide some tips, some hacks for them to, you know, find themselves back into the job market here in Pakistan successfully. मैं चाहे वो मिडिल ईस्ट से आए हो चाहे पाकिस्तान में हो, मैंने जो आपको मैजिक 6 बताया है कि दिस अप्लाइज एवरीवेयर, चाहे आप बाहर रह रहे हो चाहे आप यहाँ रह रहे हो. पहले तो आप इस चीज़ पे फोकस करें. आप बाहर से बिल्कुल आए हैं, बट अगर आपका रेज्यूमे ठीक नहीं है, आपको इंटरव्यू ठीक नहीं आप दे रहे, या आपका नेटवर्क नहीं है, आप लोगों से आपकी सीवी फॉरवर्ड नहीं हो रही है सही जगह पे, या सही लोग नहीं बैठे जो आपकी सीवी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लगेगी. जॉब मार्केट पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी अच्छी है नहीं कि हर किसी को कॉम्पिटेट कर लें. लेट्स गेट दीज थिंग्स स्ट्रेट. मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ कि जॉब के पीछे छोड़ो, आप अभी भी स्टूडेंट हैं तो अपने बिजनेस पे फोकस करें. स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, बट वर्क ऑन योर ओन थिंग, बिकॉज दिस इकोनॉमी कांट एब्जॉर्ब. अगर आपको मिल भी जाए जॉब वो इतनी लो पेड होती है और आपकी एजुकेशन की इतने आप पैसे लगा चुके होते हैं कि आप बोलते हैं कुछ तो मुझे कहीं से रिकवरी हो, और घर के आप एक्सपेंसेस भी नहीं मीट कर पाते. सिमिलरली इफ़ यू फॉलो सम इन्फ्लुएंसर्स ऑन फेसबुक और यूट्यूब जो एक्चुअली बताते हैं कि आप क्या क्या जॉब्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल, आई वुड ऑनेस्टली टेल यू गाइस कि आप टेम्प्रेरी बिजनेस भी कर सकते हैं जब तक आपको जॉब नहीं मिलती. बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. सेकंड चीज़ ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को जॉब वैकेंसीज का पता ही नहीं होता. ये भी प्रॉब्लम है. तो जितना मर्जी वेबसाइट्स अपनी जॉब्स डाल लें, rosie.pk, लिंक्डइन, सारी जॉब्स नहीं कवर कर पाते. इसी वजह से मैंने जो है एक वर्चुअल जॉब फेयर किया था 3 दिन पहले. उसमें देयर अराउंड 1050 वैकेंसीज. 24% वर IT, 20% वर इंजीनियरिंग, 44% तो IT और इंजीनियरिंग की जॉब्स थी. तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे अराउंड 400-500 जॉब्स. सो जो यहाँ पे हैं बैठे IT इंजीनियरिंग वाले वो वहाँ पे बिल्कुल देखें. ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी, HR की थी, फाइनेंस की, फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. सो वो मेरे यूट्यूब पर है, अगर आपने देखनी है जाके आप वहाँ देख सकते हैं. शायद उससे आपको बहुत सारे लोगों को राइट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही होती, पता ही नहीं होता कि जॉब है ऐसी, मतलब कहीं पब्लिश हो जाती है, कहीं ना कहीं से कोई CV आ जाती है, हायर हो जाती है. सो ये 2 मेरी टिप्स हैं आपके लिए. एक अपना मैजिक 6 पर काम करें और दूसरा वैकेंसीज आप देख लें. Acha Umar, maybe you have covered this in the conversation, but you know, लोगों का ये concern है और
जिन लोगों से मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ, जिन स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उनका भी ये कंसर्न है. I know कि it's not true, but I just want you to share your opinion on it. कि there's a consensus in amongst some people कि there's a lack of jobs in the country. So what would you like to say on that? What's your comment on that? बिल्कुल है, लैक ऑफ जॉब्स है. मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. बिल्कुल नहीं है. आपकी है ही ग्रोथ, आपकी मल्टीनेशनल ही नहीं इतनी आ रही, आपकी लोकल आ रही हैं बट ज़्यादा नहीं आ रही. तो डेफिनेटली आपको जो जॉब आपको चाहिए वो आपको हायर चांसेस पर वो जॉब आपको ना मिले, आपको वेट करना पड़े उस किसी भी कंपनी में जाने के लिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब आप अप्लाई करना छोड़ दें. तो लोगों को मिल रही हैं जॉब्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द आइडियल जॉब दैट यू वांट माइट नॉट बी राइट एट योर डोर स्टेप. कि अच्छा आप बस ग्रेजुएट हों और आप अप्लाई करें और आपको जॉब मिल जाएगी. बिकॉज जॉब्स का मसला है. आपकी कोविड में माइनस में जीडीपी गई है, उससे आप अपनी ग्रोथ देख लें. इस साल आईटी कम देखें. मुझे जो लगता है अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, इस आई थिंक ओनली दिस मंथ 1,000 IT companies have registered with SECP. 1.2 billion dollars they've business revenue wise they've generated just and even this month I think 40% increase in exports, IT exports through freelancing. और IT की टोटल 10,000 प्लस कंपनीज हैं रजिस्टर्ड. अब हमें पता ही नहीं है भाई ये कंपनीज कहाँ हैं. हमें तो लगता था पाकिस्तान बिल्कुल ही बुरा है, बट ऐसा नहीं है. So what I'm trying to say is that people are even this institute that Kunain is running. This is a great initiative. Like people don't know the importance of data science and how to, like companies, big companies like Engro and Unilever. I don't think they're properly applying data science even now and how to utilize it. So मेरा point ये कहने का कि कंपनी आप ये जॉब अगर आपने देखनी इंडस्ट्री देखनी है तो फिर आईटी इंडस्ट्री में देखें जो हाँ कंपनीज बन रही हैं. मैन्युफैक्चरिंग में तो इतनी मुझे नहीं दिख रही कंपनीज आते हुए. ये कार्स की आई हैं अभी मेजर इन्वेस्टमेंट्स, ये जो प्लांट्स लग रहे हैं. बट इसके अलावा सारा गेम सर्विसेज का चल रहा है अभी आईटी का. सो इफ यू गाइस रियली वांट जॉब्स, तो मैंने अपने जॉब फेयर में भी डाली हैं, दैट्स मोस्टली आईटी. सो उसमें आप देखें. और अगर नहीं है तो अपना कोई स्टार्ट थिंकिंग अलोंग दोस लाइंस कि यार मैं अपना कौन सा सेटअप कर सकता हूँ छोटा सा बिजनेस का. ऑनेस्टली पाकिस्तान के नॉट सस्टेन सो मेनी पीपल. है ही नहीं, जॉब ही नहीं है. अब आप देखें ना 1000 जॉब्स मर के रखी हुई हैं 2 हफ्ते में जो मैंने की हैं. मेरे साथ 6 और लोगों ने की हैं. अखबार, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन, फेसबुक, पता नहीं कहाँ से लोग कितने बैठे हैं, पता नहीं लाखों बैठे हैं. तो कहाँ से जॉब मिलेंगे? Like I think one of the things जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जो मैं भी लोगों से अक्सर शेयर करता हूँ कि पैसों के लिए नहीं बल्कि अपना जो पैशन है आप पहले उसको प्रायोरिटी दें, उसको तरजीह दें, ताकि आप जो चीज़ शौक से करेंगे, चाहे वो इट कुड बी एनीथिंग, जब आप वो चीज़ शौक से करेंगे तो आप वेज फिगर आउट कर सकते हैं टू मेक मोर मनी इन दैट, टू बी सक्सेसफुल इन दैट. तो मेरा जो पर्सनल लेवल पे, ज़ाती लेवल पे जो लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, स्टूडेंट्स, यंग लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, उनके साथ तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि भाई don't go up or apply for a job just because it's paying 6 figures. ठीक है, apply for a job that makes you happy, gives you mental peace. कि भाई ये मेरा शौक है और ये मुझे करना है, पसंद है, तो मैं इसमें फिर एक्सेल करने की जरिए मौके भी ढूंढ सकता हूँ, फिगर आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो you're absolutely right कि मतलब there's so many opportunities out there. jobs बिल्कुल कम हुई हैं but opportunities कम नहीं हुई. like ठीक है जॉब्स कम है बट यू कैन वर्क थ्रू फ्रीलांसिंग, यू कैन वर्क थ्रू साइड बिजनेसेस, कोलैबोरेशंस करके लोगों के साथ. देयर आर मल्टीपल वेज. एंड आई अंडरस्टैंड कि जॉब माइंडसेट मेजॉरिटी का होता है एंड दैट्स बिकॉज हमें अपने एक्सपेंसेस रन करने होते हैं. सो कोई और बिजनेस बैकग्राउंड हर किसी का नहीं होता. आई अंडरस्टैंड दैट. आई बिलोंग टू द सेम बैकग्राउंड. बट मेरे अंदर ये 2 साल से अवेयरनेस ये आई है कि हम लोग जो
अगर हम पढ़े लिखे, अगर हमने बैचलर्स किया हुआ है एटलीस्ट, आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एज इट इज़, क्योंकि हमें इंटरनेट कंप्यूटर यूज़ करना आ गया है। जिस बंदे को इंटरनेट कंप्यूटर यूज़ करना आ गया वो कुछ भी कर सकता है, यकीन करें वो कुछ भी कर सकता है। आप यूट्यूब पे जाके कोई स्किल सीख सकते हैं। आज बैठे 1 महीने बाद आपको पाइथन आ जाएगा, कोर्सेरा में जाके कोर्स करना है, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। सो उस एंगल, ये जब आपका अपना शौक होता है, सही है। मैंने जब जॉब शुरू की थी, मुझे उस वक्त जॉब भी करनी थी, साथ में मुझे अपने एक्सपेंसेस भी मीट करने थे। मैं कब से घर से पैसे ले जा रहा था, एक ये होता है, सही है, कर ली। जॉब से मेरा जो एक्सपोजर मिला, जो मुझे समझ आया कि कंपनी चलती कैसे हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, ये मैं अगर अपना डायरेक्ट बिजनेस शुरू कर लेता, मैं अपना बिजनेस नहीं चला पाता ठीक तरह। बट जब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ में बहुत चीज़ें करने, अच्छा आप लोग जिसको लगता है ना कि यार बिजनेस नहीं हो सकता, सब मार्केट सैचुरेट हो गई, आप सिर्फ बैठ के ना किसी दिन घर पे घर वालों से पूछना यार क्या क्या मसले हैं घर में, वो आपको मसले बताएंगे, वहीं से नीड मिल जाएगी आपको बैठे बैठे कि यार ये, फॉर एग्जांपल यार प्लम्बर को 2 हफ्ते से कॉल कर रहा है, नीड आ गई प्लम्बर का, करो बिजनेस, सर्विसेज सेक्टर खोलो, पूरा लेबर आप प्रोवाइड करो लोगों को अपनी कमीशन। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से बिजनेसेस बनते हैं। करीम ये कहाँ से है, लोगों के पास गाड़ी नहीं है यार, टैक्सी में बाबा कहाँ जाओ, ये जो चलो जी कोई बिजनेस लेके आ गया, हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, आप सिर्फ अपनी ऐप से बुला लेना। लोग तंग आ गए थे, बाहर आ रहे, कोई नहीं जा सकता शॉपिंग करने, दराज आ गया। सो ये मत सोचें कि दुनिया में सब खत्म हो गया, बिजनेस है तभी दुनिया चल रही है। आप मतलब आप बाहर निकलेंगे घर से, एक जनरल स्टोर वाला भी बिजनेस ही कर रहा है, वो अपनी फैमिली चला रहा है। तो बिजनेस हर अगर वो चला सकता है, और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं, तो आप में क्या कमी है, सिर्फ माइंडसेट की एक डिफरेंस है। सो बैठ के नीड देखें और कोशिश करें कि साइड बाय साइड अपना कुछ दूसरा काम करें। और टेक में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इफ़ यू हैव द राइट आइडिया, यू कैन गेट इन्वेस्टमेंट, यू कैन गेट सीड इन्वेस्टमेंट, यू कैन गेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन पाकिस्तान। अभी फोर्ब्स 30 में कोई 10 लोग हैं जो अपनी कंपनीज उन्होंने खोली हैं, उनको सीड इन्वेस्टमेंट मिली है, वो भी हमारे जैसे ही हैं, बस बैचलर्स किया होता उन्होंने। सो या Gee, and one of the highest number of Pakistanis this year were listed in 30 under 30 Forbes. मतलब 5 से 6 पाकिस्तानीज were listed. मतलब clearly shows के potential है हमारे लोगों में, and बहुत पोटेंशियल। um, हमारे मसले इतने opportunity. मुल्क में, हमारे इतने मसले हैं मुल्क में, तो बिजनेस बनता ही तब है जब कोई मसला हल हो रहा होता है, वैल्यू ऐड True. होती है। तो आप कर लो वैल्यू ऐड, बैठो सोचो, अपने साथ अच्छे लोग रखो जो पार्टनर अप करें, इन्वेस्टर पकड़ो और शुरू हो जाओ। साथ साथ जॉब करनी है, घर का खर्चा चलाना है, तो घर बोझ करते रहो, बट फिर जॉब के बाद रात को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना बिजनेस पे काम करो। चले उमर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड एक्सट्रीमली इंसाइटफुल सेशन। हमारे पास 2 मिनट रह गए, तो जस्ट मैं लास्ट आपसे कमेंट करना चाहूँगा कि सो इफ एनीबडी वुड लाइक टू स्टे इन टच विद यू, व्हाट आर द वेज दे कैन connect or stay in touch with you? Sure. Thank you so much, Kunan, for inviting me. Thank you so much for those who listened. I hope it helps you. और मैं आप सबको यही बोलता हूँ हमेशा कि अगर आपको हेल्प हुई है तो अपने जानने वालों, आई थिंक ये रिकॉर्डेड है, अपने जानने वालों को आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। यकीन करें मैं इतने इतने लोगों को जानता हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, उनकी लाइफ चेंज हुई है, बिकॉज वो स्किल्ड होने के बाद भी जॉब जिस तरह अप्रोच करते थे, इंटरव्यू देते थे, तो उनको पता ही नहीं था ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटर कुछ और देख रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। सो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ये सब सवाब ही है, रमज़ान भी है, तो आप सवाब कमाइए। और सेकंड, अगर इफ़ यू वांट टू स्टे इन टच तो लिंक्डइन पे यू कैन फॉलो मी। यूट्यूब पे मैं अपना कंटेंट शेयर करता हूँ सारा, बहुत कम करता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अपना जो वीडियोस होते हैं वो शेयर करता हूँ। या दैट्स द राइट फोरम। Perfect. And I will share with all of you Umar's YouTube channel link and his LinkedIn profile. So, in case you are not following him on either of the two outlets, you can. Um, Once again, thank you, Umar, and thank you everyone else for joining us. And we really hope that you found this session insightful. एंड यकीन उम्मीद होगी कि आप इस सेशन के जरिए जो आपको फ़ायदा हुआ है, आप उसको आगे भी फॉरवर्ड और अपने नेटवर्क में शेयर करेंगे. सो stay in touch, and we look forward to connecting with you again in the future. Thank you, everyone. Thank you. Allah Hafiz.